Hello student, today we start ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। विकिरण तथा द्रव की द्वितीय प्रकृति, उनके ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट अगर ड्यूल नेचर की बात करते हैं तो ड्यूल नेचर में हमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के प्रारंभिक या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम सभी को पता है कि सबसे फर्स्ट जो इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रॉन्स का वो किसने किया था? जे थॉमसन ने। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was determined by J. Thomson. After that, A.R. Millikan has determined the value of electronic charge E. Thus, by knowing the value of E by M and E, the determination of value of M became possible. By our experimental observation, Thomas concluded that the electron found in various substances are identically in all aspects, and hence the value of E by M remaining same always. The raised mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, and charge on the electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg होता है। और इस पर जो चार्ज होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज जो होता है आवेश का मान 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। सेकेंड इज फोटोन। वी हैव स्टडीड दैट द फिनोमिना such as interference, diffraction and polarization can be explained with the help of wave theory of light. However, there are certain phenomena such as black body, radiation, photoelectric effect, emission and absorption, etc. could not be explained by the wave theory. These phenomena were explained by the Planck constant या Planck's quantum theory. According to this theory, the light travel in the form of small discrete bundles of energy. These bundles are called quanta or photon. प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं. The emission and absorption of light is always in the form of these photon. प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण इन्हीं फोटोनों के रूप में होता है. According to quantum theory, a photon has a energy given by E equal to h nu, where the value of V equal to c by lambda. The value of h is 6.6 into 10 raised to the power minus 34 Plancks. The energy of the light is proportional to the frequency, inversely proportional to the wavelength. The higher the frequency, the higher the energy of the photon. Second topic is electron emission. प्रकाश का उत्सर्जन. The ejection of electrons from the surface of a metal is known as electron emission. धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं. We know that every metal has free electron. हम जानते हैं कि सारे जितने भी मेटल्स या फिर धातुएं होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं. These electrons are free to the extent that they may transfer from one atom to another with the metal, but they cannot leave the metal surface to provide electron emission.
हम सभी जानते हैं कि जो धातु होती है, धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी अनियमित गति उस मेटल के अंदर कर सकते हैं और वे अपने परमाणुओं से मुक्त होकर धातु के पृष्ठ पर लगातार अनियमित रूप से गति करते हैं। लेकिन इनमें इतनी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वे धातु की सतह को छोड़कर बाहर चले जाएं। और यदि बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है तो इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इसी क्रिया को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। However, if sufficient energy is given to the free electron, their kinetic energy increases and thus the electron will cross over the surface barrier to leave the metal. Methods of electron emission. इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 टाइप्स से होता है। फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। In this method, the metal is heated to a sufficient temperature, about 2500 centigrade, to enable the free electrons to leave the metal surface. The number of electrons emitted depends upon the temperature. The higher the temperature, the greater is the emission of electron. The ejection electrons are called thermal electrons. जब हम किसी धातु के तार को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगते हैं जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उसके अणु वाष्पित होकर निकलते हैं। जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या बढ़ती है, उसी प्रकार से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो धातु को गर्म करने पर या मेटल को हीट देने पर उसकी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम थर्मियोनिक एमिशन या तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एमिशन इज फील्ड एमिशन और क्षेत्र उत्सर्जन। In this method, a strong electric field is applied at the metal surface, which pulls the free electron out of the metal. Because of the attraction of positive field, the strong the electric field, the greater is the electron emission. The ejected electrons are called field electrons. जब धातु सतह के बाह्य प्रबल विद्युत क्षेत्र में लगाई जाती है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र के प्रबल होने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। थर्ड टाइप इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन। In this method, the energy of the light falling upon the metal surface is transferred to the free electrons with the metal to enable them to leave the surface. The greater the intensity of light beam falling on the metal surface, the greater is photoelectric emission. The ejected electrons are called photoelectrons. जब हम किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर उचित तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करते हैं तो पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे पदार्थ की सतह को छोड़कर बाहर की ओर जाने लगते हैं। इस उत्सर्जन को ही हम प्रकाश आयनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एमिशन इज सेकेंडरी एमिशन, द्वितीय उत्सर्जन। इन दिस मेथड अ हाई वेलोसिटी बीम ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द मेटल सरफेस। जब इस प्रकार की प्रोसेस में हम
त्रिवेग वाले कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को धातु की सतह से टकराते हैं तो ये कण अपनी गतिज ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी एमिशन डिपेंड्स अपॉन द एमिटर मटेरियल, मास एंड एनर्जी ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलने लगते हैं और इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम द्वितीयक इलेक्ट्रॉन या फिर उत्सर्जक या द्वितीयक उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। वर्क फंक्शन, कार्य फलन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। हमने अभी देखा था नेक्स्ट स्लाइड में कि जब भी हम किसी मेटल में क्या करते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उस मेटल में ही क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, अनसर्टेनली मोशन करते रहते हैं, बट अपनी सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो ये एनर्जी देने पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्या करते हैं, बाहर की तरफ इजेक्टेड होने लगते हैं, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं उसकी सरफेस से, तो वह मिनिमम एनर्जी जिसको देने पर, हम गिवन करने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मेटल सरफेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। तो उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं हम, वर्क फंक्शन कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मे नॉट कम आउट इवन आफ्टर हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ड्यू टू इंटरनल collision. The minimum energy required by an electrons to just escape with zero velocity from metal surface is called work function. It is denoted by phi naught of the metal. The work function of pure metal varies from 2 electron volt to 6 electron volt. The value of 1 electron volt is 1.602 into 10 raised to the power minus 19 joule. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उचित आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस में जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज। इसे सबसे फर्स्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन इजेक्ट photoelectrons from a metal surface is called threshold frequency of that metal. किसी भी धातु की सतह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धातु की सतह को छोड़कर जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी या ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे ही हम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मिनिमम वेवलेंथ लाइट विच कैन इजेक्ट photoelectron from a metal surface is called threshold wavelength of the metal. Relation between work function, threshold frequency and threshold wavelength is phi is equal to h, v naught is equal to hc upon lambda maximum. Experimental study of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को लेनार्ड और मिलिकॉन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को विस्तृत रूप से बताने के लिए अध्ययन किया था।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू क्या किया हुआ था, एक अरेंजमेंट किया हुआ था। Philips Lenard studied the photoelectric effect practically. Figures show his experiment setup. Here C is metallic cathode, A is metallic anode, and W is quartz. When light of suitable frequency fall on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode, and hence photoelectric current is constituted. Effect of intensity on photocurrent. फोटोकरंट या प्रकाश धारा और इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता में संबंध. करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में या एकांक समय में पर्टिकुलर जो एरिया है, उस एरिया से क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसमें से पास होने वाले करंट या इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से जो पर सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. एज इंटेंसिटी नो ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड. फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इस डायग्राम से क्लियर होता है कि इंटेंसिटी, जब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखते हैं कि ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है. तो स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ मिलता है, इससे क्लियर होता है कि दोनों ही क्वांटिटी जो होती है, वैल्यूज़ क्या होती है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इफेक्ट ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल. कलेक्टर पोटेंशियल इज मीन्ड फॉर कलेक्टिंग emitted electrons. Current first increases in collector potential, after which it saturated. It's saturated when emitted electrons are equal to collected electrons. This maximum current is called saturated current. Now if we keep voltage negative, जब हम वोल्टेज को नेगेटिव रखते हैं, it will repel electrons. ये इलेक्ट्रॉन से रिपेल होते हैं. At some potential, all electrons will get repelled. At this potential, photocurrent will be zero. This is called stopping potential. इसे हम stopping potential कहते हैं. तो kinetic energy maximum is equal to hv. V stopping potential is hv minus of phi naught by E. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन. इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वे फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो लाइट इंसिडेंट करते हैं उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी तीव्रता पर डिपेंड करते हैं. द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती है. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of incident light. निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट होती आती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है. देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स एमिशन डज नॉट ऑकर, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी. वेव थ्योरी के फेल्योर, उसकी कमियां. द इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशन शुड हैव अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विथ द रिजल्टिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड ऑकर
for any light regardless of frequency or wavelength. There should be a delay on the order of second between the radiations cannot with contact with the metal and the initial release of photoelectrons. Einstein photoelectric equation. According to Planck's constant theory, light is emitted from a source in the form of bundles of energy called photons. Energy of each photon is equal to h nu. Einstein made use of this theory to explain how photoelectric emission takes place. According to Einstein, when photon of energy fall on a metal surface, they transfer their energy to electrons of a metal. A part of these energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of energy is called work function. The remaining part of the energy is used in giving a velocity v to the emitted photoelectron. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Einstein photoelectric equation. According to the law of conservation of energy, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम. देयरफॉर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम. देयरफॉर के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट. दिस इज रिलेशन कॉल्ड इलेक्ट्रिक Einstein photoelectric equation. Verification of laws of photoelectric emission based on Einstein photoelectric equation. If V is less than V naught, then half mv square maximum is negative, which is not possible. Therefore, for photoelectric emission to take place, V is greater than V naught. Since one photon emitted one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. It is clear that half mv square maximum is proportional to V and H, and V naught are constant. This shows the kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency. Photoelectric emission is due to collision between a photon and electron. As such, there can be any significant time lag between the incident of the photons and emission of the photoelectrons. Therefore, the process is instantaneous. It is found that delay is only 10 raised to the power minus 8 seconds. एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करके ही फोटो सेल्स बनाए जाते हैं.